হ্যালো স্টুডেন্টস, ক্লাস 7। তো তোমাদের এই বইটা দেখতে পাচ্ছ ইংলিশ ভার্সনের মডার্ন ম্যাথমেটিক্স, আর রাইটার হচ্ছে কেশবচন্দ্র নাগ। ক্লাস 7। তো এই বইটার ভিডিও করা অনেকদিন আগে আমি স্টার্ট করে দিয়েছি, তো আজকে তোমাদের 51 নাম্বার ভিডিও আমি স্টার্ট করছি। তো দুটো ল্যাঙ্গুয়েজে তোমাদের ব্যাখ্যা করে দেবো, যাতে করে মানে হিন্দি মিডিয়ামে যে সমস্ত বাচ্চারা আছে তারা যেন অবশ্যই বুঝতে পারে। আর এই চ্যানেলে যদি তোমরা নতুন হও, এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং পাশে থাকা ওয়াল নোটিফিকেশন অন করে রাখবে, যেন এর পরে ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে যেন তোমরা পেয়ে যাও। ওকে। তো আজকের প্রবলেম হচ্ছে 4-এর দাগের পেজ নাম্বার 29। পেজ নাম্বার এটা 29 হবে, 28 থেকে স্টার্ট হচ্ছে। x/y = 2:3, y/z = 4:3. ফাইন্ড x, y, x/y/z। তাহলে সলিউশন এইভাবে করা যাবে, x/y = 2:3, y/z = 4:3। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा जो x/y, मतलब यहाँ पर दोनों y है सेम है, तो इसीलिए 3 और 4 इसका सेम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 का सेम करने के लिए 3 और 4 का एलसीएम क्या है, एलसीएम होगा 12। तो मतलब यहाँ पर 12 क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 क्रिएट करने के लिए यहाँ पर 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा और 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, मतलब 8:12। और इसके बाद यही 3 के साथ एक 4 मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो 3 4 जा 12:9। तो एक लाइन देना पड़ेगा ऐसे। मैंने क्या किया, जो यहाँ पर देखा मैंने, जो x/y, y/z, तो यहाँ पर y दोनों सेम है, तो दोनों सेम है मतलब दोनों का सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो सेम नहीं है, इसीलिए सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालना होगा तो मतलब यही नंबर क्रिएट करना पड़ेगा, ये 12 नंबर यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 12 क्रिएट किया, यहाँ पर 12 क्रिएट किया, तो ये 4 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 12 क्रिएट हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर भी ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 8:12। फिर क्या करना पड़ेगा, 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12:9। तो दोनों y का वैल्यू सेम हो गया। तो इस बार लिखना पड़ेगा कि x/y/z = 8:12:9। ये है सबसे अच्छा मेथड है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो एग्जाम में ये मैथ आता है, तो ये है सबसे শর্টকাট মেথড है, तो और ইজি মেথড भी है। ঠিক আছে, এরপরে এই অঙ্কটা আমি বাংলাতে ব্যাখ্যা করছি। তো প্রথমে আমাদের কি করতে হবে, 3 আর 4 কে মিল করতে হবে। তো মিল করতে গেলে তাহলে আমাদের 3 ও 4 এর লসাগু বের করতে হবে। লসাগু হচ্ছে 12, তার মানে 12 এখানে তৈরি করতে হবে। 12 তৈরি করতে গেলে 4টাকে 3 আর 2 এর সাথে এখানে গুণ করে দিতে হবে। একই রকমের 3 কে 4 ও 3 এর সাথে গুণ করে দিতে হবে, দিলে এখানে দেখো 12 12 সমান হয়ে যাচ্ছে। তাহলে অতএব x/y/z 8:12:9। তাহলে এটা হলো আনসার। এছাড়াও আর একটা যে পদ্ধতি আছে, যে অল্টারনেট মেথড, x/y = 2:3 implies x/y = 2/3, ऐसा लिखना पड़ेगा। y/z = 4:3 implies y/z ऐसे लिखना पड़ेगा 4/3। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा जो सेम टू सेम प्रोसेस, जो y का वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर y का वैल्यू 4 है, तो 3 और 4 ऐसे लिखना पड़ेगा, दो इक्वल करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम 12, तो 12 करना पड़ेगा।
तो मतलब 2/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, तो 8/12 मिलेगा। और यहाँ पर y का वैल्यू 4, मतलब यही 12 क्रिएट करना पड़ेगा, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, और वही 3 डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12/9। तो यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 ऐसे देना पड़ेगा। तो 1 एंड नंबर 2 implies that x is to y is to z is equal to 8 is to 12 is to 9। ऐसे भी करोगे तो ये एक অল্টারনেটিভ মেথড है, ঠিক है। তাহলে এবার বাংলাতে ব্যাখ্যা করছি অঙ্কটা। তো প্রথমে আমরা কি x is to y আর 2 is to 3 এটাকে কি করব, লব হর আকারে করে নেব। একই রকম ভাবে y is to z, তাহলে এখানে করে নেওয়ার পরে এখানে দেখবো যে y এর ভ্যালুটা সমান করতে হবে। তাহলে সমান করলাম, তাহলে এখানে 12 y এর ভ্যালুটা সমান করতে গেলে এখানে দেখবে 4 এখানে 3, তাহলে 3 আর 4 এর লসগু হচ্ছে 12, তার মানে হচ্ছে 12 তৈরি করতে হবে। তাহলে 3 এর সাথে কত গুণ করলে 12 হবে, তাহলে 4 গুণ করলে এখানে হবে। আর একই রকম ভাবে 2 এর সাথে 4 গুণ করলে তাহলে দুটো মানে এখানে 4, এখানে নিচে 4 গুণ করা মানে উপরেও 4 গুণ করতে হবে, তাহলে হলো 8/12। একই রকম ভাবে এখানে 12 তৈরি করতে হবে, তার মানে 4 এর সাথে 3 গুণ করা মানে নিচেও 3 গুণ করতে হবে, 12/9। তাহলে এই দুটো থেকে আমরা পাই x is to y is to z সমান 8 is to 12 is to 9। ওকে, এরপরে করব তোমাদের নেক্সট ম্যাথ। দেখো তাহলে, तो नेक्स्ट मैथ ये है a is to b इक्वल टू 1 is to 2, b is to c इक्वल टू 3 is to 4, c is to d इक्वल टू 5 is to 6, फाइंड a is to b is to c is to d। ये अच्छा मैथ है, इंपॉर्टेंट मैथ है, इसका स्टार भी देना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन ऐसे करना पड़ेगा। देखो जो पहले जो शॉर्टकट मेथड है बहुत अच्छा मेथड है, तो उस मेथड में मैं करता हूँ। तो a is to b इक्वल टू 1 is to 2 ऐसे लिखो, b is to c 3 is to 4, c is to d 5 is to 6। फिर क्या करना पड़ेगा, एक लाइन देना पड़ेगा ऐसा। तो आंसर क्या चाहिए, a is to b is to c is to d। तो पहले इस ऐसे लिखो, a is to b is to c is to d। पहले क्या करना पड़ेगा, जो 1 3 और 5 इसका मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इस टू b का वैल्यू लिखना पड़ेगा। ये है a का वैल्यू, तो b का वैल्यू लिखने के लिए 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, उसका साथ 5 मल्टीप्लाई होगा, तो होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर क्या करना पड़ेगा, c का वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो c का वैल्यू लिखने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, 2 के साथ 4, उसका 4 के साथ 5, 2 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसका साथ इस बार d का वैल्यू चाहिए, तो d का वैल्यू होगा 246, 2 इंटू 4 इंटू 6। तो ये है मेथड। तो इस लाइन पहले समझ के लिखना पड़ेगा, तो मैथ का आंसर सही सही दे देगा। तो मैंने फिर एक बार रिपीट करता हूँ, जब ए का वैल्यू मैं लिखूं तो 1 3 और 5 इसका जो कॉलम है, जो कॉलम के साइड में जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डी के वैल्यू लिखने के लिए वही 2 4 6 जो कॉलम में जो नंबर है वही मल्टीप्लाई मैंने किया। जस्ट दोनों सेम है, कॉलम के साथ साथ जो जो डेटा है उसका मैंने मल्टीप्लाई किया और डी का वैल्यू लिखने के लिए वही किया। लेकिन बी और सी का वैल्यू ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तो 2 के साथ पहले 3 उसका बाद 5 मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और 2 के साथ 4 और 5 मल्टीप्लाई के मन करके सी का वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो इस मैथ का अंदर देखना पड़ेगा जो कौन सा कॉमन पार्ट है। यहाँ पर देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 कॉमन है। तो हर
जो नंबर है जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है उसका अंदर देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो थ्री तो कॉमन दोनों के अंदर है, मैंने थ्री नंबर का अंदर है, लेकिन इसका अंदर नहीं है। इसीलिए टू मैंने ये जो चारों नंबर है 1 2 3 4 इसका अंदर जो कॉमन नंबर है उसका आउट करना पड़ेगा, मतलब डिवीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने देखा जो 5 इस तीनों का अंदर कॉमन है लेकिन इसका अंदर नहीं है। तो चार नंबर का अंदर नंबर इसका अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 इस टू इसका मल्टीप्लाई 10 30 इस टू इसका 40, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 इस टू 6 36। देखो यहाँ पर 36 मिल गया, और जो ये इस टू बी टू सी का वैल्यू ये आ गया। इसके इस चारों नंबर के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही है आंसर। एक्सरसाइज 9 4 का बी। एक्सरसाइज 9 4 का बी। 15 इस टू 30 इस टू 40 इस टू 48। ओ सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया। 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 होगा, सॉरी। तो यही है आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट मैथ है 4 का सी है, सेम टू सेम मैथ है। देखो 4 का मैथ क्या है, 4 का सी एकदम सेम टू सेम मैथ है। अच्छा, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। देखो इसका ऑल्टरनेटिव मेथड है। इस मैथ का ऑल्टरनेटिव मेथड ऐसे करना पड़ेगा, ऑल्टर नेट मेथड। देखो यहाँ पर तो पहले जो 4 का ये का तरह जो मैथ था उसी का तरह करना पड़ेगा। ए इज टू बी इक्वल टू 1 इज टू 2, बी इज टू सी इक्वल टू 3 इज टू 4। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर बी बी सेम है दोनों, तो इसका सेम करना पड़ेगा, मतलब सेम वैल्यू लेके आना पड़ेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर 6 क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब 3 के साथ 2 और 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई 6। और फिर भी क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ 3, तो पास 6 बन गया, और 2 के साथ 4 8 बन गया। तो ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू आ गया 3 इज टू 6 इज टू 8। ठीक है, इस बार कंपेयर करना पड़ेगा जो सी और डी का जो वैल्यू है वही सी और डी का वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी टू डी इसका वैल्यू क्या है, 5:6, मतलब इसका नीचे में लिखना पड़ेगा 5:6। ठीक है, तो यहाँ पर तो अलग करके सेपरेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बी टू सी का जो वैल्यू है ये यहाँ पर जो अलग अलग करके भी लिख सकता है ऐसा। यहाँ पर क्या होगा, बी टू सी और सी टू डी, इसका वैल्यू क्या है, बी टू सी का वैल्यू 3:4 और ये है 5:6। तो दोनों यहाँ पर बी टू सी टू डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 और 5 है, सी सी यहाँ पर सेम है, तो इसका सेम करना पड़ेगा। 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, तो 5 का साथ मल्टीप्लाई होता है और 5 का साथ ए मल्टीप्लाई होता है, तो मतलब 15:20। उसके बाद 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो गया तो 20 मिल गया, तो दोनों सेम। और 4 के साथ 6 भी मल्टीप्लाई होगा 24। तो हो गया बी इज टू सी इज टू डी का वैल्यू 15:20:24 आ गया। फिर क्या करना पड़ेगा,
इसका नीचे में वही वैल्यू इसका a:b:c का नीचे में लिखना पड़ेगा। तो b:c:d इक्वल टू क्या आ गया 15:20:24। देखो यहाँ पर इसका अंडर में ये वैल्यू मैंने लिख दिया। तो लिखने के बाद यहाँ पर देखने वाले बी यहाँ पर सेम है, सी सेम है, लेकिन डी यहाँ पर और ये अलग है, तो इस दोनों का सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुछ। क्या लिखना पड़ेगा? देखो यहाँ पर b का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर b का वैल्यू है 15। तो 6 और 15 का सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? और यहाँ पर c का वैल्यू 8 है, यहाँ पर 20 है, तो इसका भी सेम करना पड़ेगा। तो पहले मैंने क्या किया, इस दोनों का सेम किया। 6 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 30 होता है, एलसीएम होता है 30। ठीक है, तो इसका भी मैंने क्या किया, 30 करने का प्लान किया। ठीक है, तो यहाँ पर 30 करने के बाद क्या मिलता है? तो इसका साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 5। तो 5 इसका साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो 15:5, 30:40। और यहाँ पर क्या, बी का वैल्यू मैंने सेम किया। तो बी का वैल्यू मैं सेम करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 30 क्रिएट करना पड़ेगा, तो 15 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरा लाइन के साथ 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 30 यहाँ पर 30 क्या आ गया देखो, 40:24 ये आ गया। लेकिन यहाँ पर सी का वैल्यू तो सेम है, तो सी का वैल्यू यहाँ पर सेम करना, सी का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया देखो, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 40 है, तो सी का वैल्यू सेम आ गया, अपने आप सी का वैल्यू सेम आ गया। तो लिखना पड़ेगा क्या, हेंस a:b:c:d इक्वल टू, ए का वैल्यू है 3, ए का वैल्यू देखो यहाँ पर 15, सॉरी ये लास्ट वैल्यू 15:, बी का वैल्यू है 30, सी का वैल्यू है 40, और क्या गया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 48 होगा। डी का वैल्यू आ गया 48। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो हो सकता है, लेकिन ये भी एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, तो ऐसे भी तुम लोग मैथ कर सकता है। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, जो पहले वाला मैथ था, जो ए का मैथ था, वही मेथड में मैंने किया, जो ये इज टू बी और बी इज टू सी का वैल्यू मैंने डाला। उसके बाद बी यहाँ पर सेम किया, तो सेम क्रिएट किया, तो 6 यहाँ पर मिल गया। तो ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू यहाँ पर हुआ 3:6:8। उसके बाद मैंने क्या किया, b:c और c:d के साथ b:c:d का वैल्यू मैंने निकाला सेम टू सेम मेथड से। तो वही b:c:d का वैल्यू यहाँ पर इस a:b:c का अंडर में यहाँ पर मैंने लिखा। तो यहाँ पर b और b का वैल्यू मैंने सेम करने का कोशिश किया। तो कोशिश करने के बाद मैंने तो सेम करने के लिए तो एलसीएम करना पड़ेगा, तो एलसीएम यहाँ पर 30 आ गया, यहाँ पर एलसीएम 30। तो यही एलसीएम के साथ यहाँ पर सी का वैल्यू मैंने सेम किया। देखो यहाँ पर 15:15, तो यहाँ पर 6 सी का वैल्यू है यहाँ पर, तो मैंने सी का वैल्यू सेम करने के बाद मैंने देखा जो बी का वैल्यू यहाँ पर सेम किया, बी का वैल्यू सेम करने का कोशिश किया, तो अपने आप सी का वैल्यू भी सेम हो गया। तो इसीलिए मैंने लिखा जो इज टू बी इज टू सी इज टू डी इक्वल टू 15:30:40:48। ठीक है, তো ফির এই ম্যাথ দুটো মানে দুটো প্রসেসে তোমাদের করে দিলাম, খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ।
তাহলে প্রথমে যে ম্যাথটা করলাম, আমি বাংলাতে বলছি যে এটা হচ্ছে শর্টকাট মেথড, যে তোমাদের কম্পিটিটিভ এক্সামে যদি ম্যাথটা আসে তাহলে অবশ্যই শর্টকাট মেথড এভাবে করা সম্ভব। তাহলে প্রথমে এই মেথডটা যে করলাম, অবশ্যই তোমরা দেখেছো যে আমি হিন্দিতে ব্যাখ্যা করেছি। তো প্রথমে এই যে কলম বরাবর যে মানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এর ভ্যালু, আর এই কলম বরাবর যে ভ্যালুটা আছে 2 2 গুণ 4 গুণ 6, এটা লাস্ট। এ আর বি এর ভ্যালুটা লেখা সব থেকে সহজ। তারপরে কি করলাম, যে সি এর ভ্যালু লিখতে গেলে কি করব, যে 2 এর সাথে 3 তারপর 5 গুণ করব। তারপরে সি না, সরি, এখানে বি এর ভ্যালু লিখতে গেলে, আর সি এর ভ্যালু লিখতে গেলে 2 এর সাথে 4 গুণ 5 গুণ করে এইভাবে লিখ। এবার দেখবো যে এই চারটে রাশিমালার মধ্যে কমন ফ্যাক্টর মানে কমন উৎপাদক আছে নাকি। তো দেখলাম যে কোনো কমন উৎপাদক নেই। নেই মানে গুণ করে দিলাম এগুলো। যদি কমন উৎপাদক থাকতো, ধরো এই চারটে রাশিমালার মধ্যে যদি কমন উৎপাদক 3 থাকতো, তাহলে 3টাকে ভাগ করে দিতাম। তাহলে ভাগ করে দিয়ে যে মানে যে রাশিমালাগুলো থাকতো, যে যে ডেটাগুলো থাকতো সেগুলো আমরা গুণ করে লিখতাম। তাহলে এটা হলো প্রথম মেথড, সব থেকে বেস্ট মেথড। আর অল্টারনেটিভ মেথড যেটা আছে সেটা একটু তোমাদের কাছে হার্ড লাগতে পারে। তো সেটা কি করলাম, আমি প্রথমে প্রথম অঙ্কের মতো 4 এর এর অঙ্কের মতো a/b আর b/c এখানে বের করে b সমান করে a/b/c এর ভ্যালুটা এখানে লিখলাম। আবার b/c আর c/d এর ভ্যালু এখানে c এর ভ্যালু সমান করে b/c/d এর ভ্যালু এখানে করলাম। করার পরে তারপর এই ভ্যালুটা নিচে লিখলাম, a/b/c এর নিচে লিখে দেখলাম b সেম আছে। বি এর ভ্যালু এখানে সেম মানে একই করার মানে চেষ্টা করলাম। এবং বি এর ভ্যালু এখানে দেখো, এখানে মানে কত আছে, 6 আছে, আর এখানে 15। তাহলে বি এর ভ্যালু, তাহলে এখানে এলসিএম করে দিলাম বি এর ভ্যালু মানে দুটো করে, তাহলে এখানে 30 তৈরি করতে হবে। তাহলে 30 এখানে তৈরি করে দিলাম। 30 যখনই আমি তৈরি করলাম তখন দেখা যাচ্ছে যে আপনা সি এর ভ্যালুটা সেম হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, নো প্রবলেম। তাহলে সি এর ভ্যালু সেম মানে হলো, আর এখানে বি এর ভ্যালু সেম হলো। তাহলে আমরা লিখলাম যে অতএব a/b/c/d সমান 15:30:30:40:48। তাহলে ফার্স্ট মেথড এবং সেকেন্ড মেথডের দুটো আনসার সেম হলো। তাহলে এটাই হচ্ছে এই অঙ্কের মানে আমাদের সমাধান। তো এই চ্যানেলে যদি তোমরা নতুন হও তাহলে এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। তাহলে এইভাবে তোমরা অঙ্ক ব্যাখ্যা সহকারে দুটো মেথড বা তিনটে মেথড মানে আরো অন্যান্য মেথডে তোমাদের যতটা সম্ভব আমি তোমাদের সলভ করে দেবো। আর ইউটিউব ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা এইভাবে অঙ্কের বেসিক তোমরা অবশ্যই স্ট্রং করতে পারবে। ঠিক আছে, আর বন্ধু বান্ধবদের তোমাদের এই চ্যানেলটা অবশ্যই শেয়ার করবে, তারা যেন এইভাবে ইউটিউব ভিডিওর মাধ্যমে যেন সুন্দরভাবে অঙ্ক শিখতে পারে। ওকে।